Good morning, students. In my last lecture, I told you about the characteristic of the living organism. So here are the once again we'll revise. So nutrition I have taken, metabolism was done, respiration, irritability, movement, growth, adaptation. Right, adaptation, I told you that for their own survival they are trying to adjust themselves to the place where they are living. Okay, like humidity, temperature, rainfall, whatever the environmental conditions are there, means related to food, also related to staying, whatever conditions are there prevailing there, so the organism tries to adapt themselves to that environment. Okay, that is called adaptation. Now the last one, eighth one was remaining, that is reproduction. Reproduction, as you know, it is the means by which the organism starts producing its, means it continues its race. ओके, रेस कंटिन्यू करने का मतलब होता है कि अपने टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो और ज़्यादा ग्रो करना. राइट, सो इन रिप्रोडक्शन व्हाट वी डू, वी कंसिडर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओनली एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो इन sexually when there is reproduction, then only we consider it as a reproduction. So here there are many other modes of reproduction also, means to continue the race. So these are called the asexual means. As you can see here, this is the asexual means of reproduction. Like fungi, they reproduce by spores. They have given the examples over here, that how many organisms and how they are asexually reproducing. So fungi are reproducing by spores. Similarly, you are having hydra. Hydra you have read in 9th standard also. It is reproducing by budding. Then you are having this worms and starfishes, etc. They are reproducing by regeneration. Now what is regeneration? Regeneration means if any of the part is cut down or broken from the body of an organism, तो अगर एक टुकड़ा भी टूटा है तो वो क्या करता है, पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. राइट, सो आपके स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटस जो होते हैं ना, इकाइनोडर्म्स, इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दे फॉलो रीजनरेशन. ओके, दैट इज़ द फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट the lost part of its body and becomes a new organism. Okay, here they have mentioned कि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट अगर अलग हो जाता है तो वो पूरा क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. Now filamentous algae, fungi and protonema of a moss also easily multiply by fragmentation. कभी कभी आपको ना एल्गी में, फंजाइज में भी आपको फ्रेगमेंटेशन मिलेगा कि अगर उसका कोई पार्ट अलग हो जाता है तो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके, now in unicellular organism, now growth and reproduction, what is seen in unicellular organism, actually the phenomena, we cannot say that it is very clear how the mode of reproduction takes place in unicellular. What we have read is like in human beings, in 10th standard you have studied mitosis. Okay, it is only a mode of reproduction in which a cell grows to a maximum size, and after the growth to the maximum size it divides into two parts. Okay, so it is a means a way in which growth can take place, and it is a simple mode of cell division. So this cell division is only the mode which is followed in some of the unicellular organism. amoeba हो गया आपका, unicellular bacteria हो गए, तो यूनिसेलुलर एल्गीज भी हैं, उनमें क्या होता है कि सिंपल सेल डिविजन जो होता है, माइटोसिस, दैट टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर दैट द फ्रॉम वन सेल इट बिकम्स टू. ओके, तो हम इसी को मान लेते हैं कि इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. वैसे इट इज़ नॉट क्लियर, मीन्स इट डज नॉट क्लियरली कम अंडर रिप्रोडक्शन. एक सेल से दो सेल तो हमारी बॉडी में भी हो रहे हैं एवरी टाइम व्हेन वी आर ग्रोइंग. ओके, सो वी कैन नॉट से कि हमारी बॉडी में बार बार रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट इन यूनिसेल्युलर we cannot means clear process is not defined. So this cell division is only the mode of reproduction in unicellular organism. Right, then these were the 8 properties that how do the living organism are differentiated from the non-living one. So non-living में ये 8 characteristics जो हमने discuss किए, ये 8 के 8 characteristics नहीं पाए जाते हैं. Okay, so this is the text, please go through this. Then there is a difference, tables, wherever you find this boxes in your book, these are very important. So living and non-living का difference है, you know this, you have to go through this yourself. Then biology is a science of exceptions. There are some exceptional examples कि आप जो चीज़ follow रोज़ करते हैं उसके अलावा कुछ
अलग से चीज़ें हैं यहाँ पे, तो दिस ऑल्सो फॉर योर नॉलेज यू हैव टू गो थ्रू. इसमें से वन वर्ड जो होता है ना, वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, दे कम फ्रॉम दिस बॉक्सेस. ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू. लिविंग नॉन लिविंग का डिफरेंस आप देख लेंगे, एंड दिस एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स ऑल्सो. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity means that in simple terms, if I talk of the term biodiversity, biodiversity means it is the occurring of wide variety. You can see here wide variety of life forms in a different morphological size, color, anatomy, habitat and habits. Okay, तो मतलब diversity as a word itself signifies, diversity मतलब बहुत सारे differences है ना. तो ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मे बी दे कैन बी प्लांट्स ऑल्सो, दे कैन बी एनिमल्स ऑल्सो. सो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट. एनाटॉमी उसकी डिफरेंट होती है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, देन द एनवायरनमेंट इन विच दे आर स्टेइंग दैट इज़ डिफरेंट, द ईटिंग हैबिट्स आर डिफरेंट. सो देर आर लॉट ऑफ things which we can differentiate, and we can differentiate the animals on the basis of those morphological characters, anatomical characters, and whatever the differences are found in an organism. नाउ इससे आपके क्या होते हैं कि बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं और अलग अलग एरिया में क्या करते हैं, वो रह रहे होते हैं, है ना. सम आर स्टेइंग इन अ सॉल्टी एनवायरनमेंट, सम ऑर्गेनिज्म, सम आर स्टेइंग इन हायर माउंटेन्स, सम आर in the deep shallow of the seas they are staying, then some are in the soil, some are in the air. So there are so many differences in this biodiversity whole topic. They have just given this only, this description is given that we are having so many type of organism in the world, and how these organisms are differentiated and how they are categorized, this we will see. Need for classification, in this there is a next topic, need for classification, कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की. तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी बिकॉज वी आर मीन्स रिच इन बायोडाइवर्सिटी, है ना. पूरे वर्ल्ड में यू कैन फाइंड लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मैनी ऑर्गेनिज्म आर देयर. तो आप हर एक को अलग अलग करके अगर आप कैटेगराइज करने लगेंगे तो इट विल बी वेरी टफ टू स्टडी थिंग्स. सो देयर वॉज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन देन इट वॉज क्लियर. क्लासिफिकेशन जब भी किया गया तो ऐसे किया गया कि अगर आपकी कोई भी चीज़ें सिमिलर हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सिमिलर हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के, तो हमने उनको क्या किया, एक कैटेगरी में या एक जगह पे ग्रुप बना के उनको कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया है. एंड इन दैट इफ़ यू आर स्टडिंग, वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप, नॉट ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, right? I hope you remember in your 9th class there was a chapter of classification, जिसमें आपको फाइलम, जीनस, ग्रुप, क्लासेस, एवरीथिंग वाज क्लासिफाइड, राइट. सो तो इस तरीके से ही हम लोग क्या करते हैं, अगर एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म हैं तो हम उनको एक जगह प्लेस कर देते हैं, एंड दैट मेक्स इट्स ईजी फॉर अस टू रीड द थिंग्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप. ओके, now need for classification, this is given here, this is the identification. Now to deal with the enormous diversity in the living world, the scientific arrangement of the living things in a group is required on the basis of some common characteristic. The process is called classification. in a board letters they have given कि आप क्या करते हैं कि जो आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को एक जगह में प्लेस कर देते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं. उससे क्या होता है कि आपके लिए ईजी हो जाएगा किसी भी ग्रुप को स्टडी करना, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. तो आप ये सोचिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, इट विल टेक योर लाइफ टाइम टू स्टडी सिंगल ऑर्गेनिज्म. इफ़ यू टेक सिंगल ऑर्गेनिज्म it will take your whole lifetime. So we study groups, right? So this was the need of classification. Then next comes taxonomy and systematics. Many times difference between taxonomy and systematics have come in the exams, so please read the difference between this, and difference will come from here only. Taxonomy क्या होती है, it is the branch of study that deals with the principle and procedures of identification. ये देखिए आपके taxonomy में आप क्या करते हैं ना, आइडेंटिफाई करते हैं उसका nomenclature और classification of the organism, right? Then it collects the information of the external and internal structure. Means in this you are
trying to classify the organism on the basis of the identification. Identification means आप उसको identify करेंगे कि कैसी कैसी चीज़ें इसमें हैं, और जब properly इसको आप कर लेंगे identify, then you will group them together, राइट और अगर आपको सेम नहीं लग रही हैं चीज़ें, अगर सेम लग रही हैं तो यू विल पुट देम इन वन ग्रुप, अगर डिफरेंट लग रही हैं तो आप उसको अलग अलग कर देंगे, राइट. देन नेक्स्ट वन इज़ योर सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स इज एक्चुअली इट डील्स विद अ कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. कंपैरेटिव मतलब सिस्टमैटिक्स क्या करता है, कंपेयर करता है. आपने टेक्सोनॉमी में सारा स्टडी कर लिया दैट ये इसके फीचर्स कैसे हैं, इसके बॉडी की मॉर्फोलॉजी कैसी है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का कैसा है, वो आपने टेक्सोनॉमी में रीड कर लेना है. उसके बाद सिस्टमैटिक्स जो होता है ना, वो इसको कंपेयर कराता है कि आपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म, आपने फ्रॉग और कॉकरोच लिया तो फ्रॉग का अलग एनाटॉमी होगी, कॉकरोच की अलग एनाटॉमी होगी. तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये कंपैरिजन करने के लिए वी टेक सिस्टमैटिक्स, राइट. और इसके अलावा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब होता है कि इससे सिस्टमैटिक्स में क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को ट्रेस बैक किया जाता है. और ट्रेस बैक करना मतलब कि अगर कॉकरोच आया है तो वो पीछे पीछे कौन सी चीज़ से बन के आया होगा. लाइक इफ़ आई टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, वी से दैट ह्यूमन बींग्स दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स. तो हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एप्स है, और एप से पहले पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा था 10th में. तो 10th में यू हैव सीन हाउ वी हैव इवॉल्व्ड. So this is the tracing back of evolutionary history. Similarly, there is a evolutionary history for every organism. हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है कि वो एक्चुअली जो प्रेजेंटली वो आज दिखाई दे रहा है, इट हैज़ कम फ्रॉम वेयर, है ना. तो ओरिजिनली वो कहाँ से आया है, व्हेन देयर वाज ओरिजिन ऑफ लाइफ, फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लाइफ, फ्रॉम एक्चुअली विच ऑर्गेनिज्म इट हैज़ इवॉल्व्ड एंड हैज़ बीन मॉडिफाइड टू द प्रेजेंट डे सिनेरियो. ओके, सो ये आपको यहाँ तक जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ट्रेस करनी होती है, ये सिस्टमैटिक्स में होती है, और कंपैरिजन भी सिस्टमैटिक्स में होता है. टेक्सोनॉमी में आप क्या करेंगे, यू विल आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विद अ डिफरेंट मोड, राइट. सो यू नीड टू गो थ्रू द डेफिनेशन. You have to learn the definition of both taxonomy and systematics. Then Systemi Natura. This is the title given for the book published by Linnaeus. Linnaeus जो थे ना, इन्होंने क्लासिफिकेशन मतलब प्रॉपरली किया था लास्ट में. तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी हुई थी जिसमें इन्होंने सारा सिस्टम किस तरीके से जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसका कंपैरिजन इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडीज़. नाउ इन स्पीशीज़, ये इन्होंने अलग से इसलिए बोला है कि आप स्पीशीज़ में एक टाइप के ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर रहे हैं. तो जब आप स्पीशीज़ में रख रहे हैं तो दे आर हैविंग सिमिलर कैरियोटाइप, जेनेटिक मटेरियल, मतलब मैक्सिमम फीचर्स जब आपके मैच कर रहे हैं, देन यू कीप द ऑर्गेनिज्म इन अ सेम स्पीशीज़, राइट. तो अगर आप ये सोचिए जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, कैरियोटाइप समझते हैं आई होप. कैरियोटाइप इज़ अ means a diagrammatic representation of the chromosome of an organism. Whatever organism are present inside the body of an organism, they are mapped. Mapped means according to their size. जैसे आपने 10th की बुक में देखा होगा, आपके सेकंड चैप्टर में है, तो वहाँ पर आपका क्या है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम पहले लगा हुआ है, फिर सेकंड नंबर पे उससे छोटा. तो अकॉर्डिंग टू द साइज व्हेन ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड प्रॉपरली एंड अ पिक्चर इज टेकन, दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइप, है ना. तो अगर कैरियोटाइप आपका बिल्कुल सेम आ रहा है, आपका जेनेटिक मटेरियल सेम है, और बहुत सारे फीचर्स सेम है, मतलब दिस इज़ द लास्ट मॉलिक्यूलर लेवल की जेनेटिक चीज़ आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है. तो जेनेटिकली अगर सेम है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियस है कि वो सेम स्पीशीज़ में आएगा, ठीक है. तो जेनेटिकली मतलब जेनेटिकली आपका डीएनए होता है, तो डीएनए जो है अगर वो सिमिलर आ रहा है कहीं पे, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करता है, right. So this is concept and the naming of a species, binomial nomenclature. In this binomial nomenclature, binomial का मतलब होता है by means two, तो दो नाम होते हैं, है ना. एक होता है आपका स्पीशीज़ का नेम और एक होता है जीनस का नेम. तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल. बाइनोमियल मतलब बाई मीन्स टू, ठीक है. Now nomenclature may be defined as a system of naming the organism. तो nomenclature naming होती है, और binomial मैंने आपको बता दिया, it's of two names, okay. One is the species name, one is the genus name. Then you are having this your homework is one homework is always given, and that is you have to go through the textbook, ठीक है. I am only giving you a idea, brief idea of the things. You have to go through the text.
Then your next homework is you have to write the common names and the scientific names. This is again 1 marks question. Okay, means in exams it comes like ginger hair, China rose, what is the scientific name? You have to learn these scientific names, right? And then binomial system, I'll tell you in detail in my next video. Meanwhile, you please go through this and learn the scientific names. Okay, thank you.